Welcome to the third episode of the Jindi podcast. Today we're talking about how not to be insecure. मैंने इससे पहले भी 2 वीडियोस बनाई हैं. If you haven't checked them out, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा. Go to watch them. I wanted to be liked. And I think this being liked वाली प्रॉब्लम originates जब तुम स्कूल में होते या तुम अपने कॉलेज के स्टार्टिंग ईयर्स में होते. I think this is the age तब तुम चाहते हो कि तुम बहुत फिट हो. Like एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में तुम फिट हो सको, तो तुम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो. If there's one thing I've learned from the past is if you try to be liked by everyone, nobody will. And to be honest, nobody likes a people pleaser. If you try and become one, you will always be insecure because you will never be working on the root cause of why you are. I won't lie to you and say that इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी सारी insecurities हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी. But what I can say you, अभी मेरी भी नहीं हुई है. आई एम इन द फेज ऑफ इट. इनसिक्योर हूँ, आई एम स्टिल इनसिक्योर, बट आई कैन टेल यू सम वेज दैट आई फाइंड माई वे आउट ऑफ दैट. मतलब अभी मैं काफ़ी कम इनसिक्योर होने लग गया हूँ एज़ कम्पेयर टू मैं पहले था. तो लाइक मे बी दिस विल हेल्प यू. दिस वीडियो विल हेल्प यू cope with things and probably you'll come out as a confident person after watching this. First, I'm going to cover the 3 most important reasons that why you feel insecure. It won't cover everything, but probably तुम्हारी problem cover हो जाएगी. Recent rejections and failures. I failed quite a lot in my life. I failed relationships, I failed in exams. Particularly, I have failed in exam 2 times. जो एक नीट का एग्ज़ाम होता है, किसी को बच्चों को पता नहीं होगा तो लाइक नीट का एग्ज़ाम होता है एंड आई गेव इट 2 times and I failed. और it feels bad for some time. My confidence got completely ruined for a while after that. Recent events from my life like rejections or failure makes us feel insecure in ourselves and our ability to do things. Lack of confidence due to social anxiety. Now I remember when I was in a social situation, मैं बहुत ज़्यादा overthink करता था. I used to overthink क्या मैं सही खड़ा हुआ हूँ, क्या मैं सही चल रहा हूँ, क्या मैंने ग्लास ढंग से पकड़ा है, क्या मैं ढंग से बात कर रहा हूँ, क्या मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली इन लोगों को पसंद आ रही है, क्या मेरे जोक्स अच्छे हैं. मतलब आई यूज्ड टू थिंक अ लॉट, ओवरथिंक अ लॉट. एंड मुझे लगता था कि लोग मुझे सिर्फ देख रहे हैं और मुझे जज कर रहे हैं. कॉज नंबर 3, insecurity driven by social media. When you open up your Snapchat or like Instagram, Facebook तो अब यूज़ नहीं करता कोई. अगर तुम करते हो तो तुम okay boomer. You are met with these unrealistic bodies and the perfect relationships, people having the best time of their lives, people enjoying their lives, and तुम बस बैठ के उनको देख रहे हो. And you start to compare yourself to their life. People are making it big in life and you're just staring at a screen, looking at them, having a good time. And watching them do that makes you really nervous. Lionel Messi won his first Ballon d'Or at the age of 21. Steve Jobs found Apple at the age of 21. This is a little bit intimidating when you think like that. Okay, now, so we understand the root causes of things. Now, let's get to the solution. I'll help you conquer these insecurities one by one. First of all, you have to stop assuming. Don't assume that people are better than you. हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ में कोई तुमसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है. जैसे एक डॉक्टर ऑब्वियसली तुमसे ऑपरेशन करने में बड़ा होगा, बट जस्ट बिकॉज इज़ अ डॉक्टर तुम उसको अपने से बड़ा मत मानो. जस्ट बिकॉज इज़ अ डेंटिस्ट उसको अपने से बड़ा मत मानो. हाँ, एक पर्टिकुलर स्किल है जो उसके पास तुम्हारे से ज़्यादा है. स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन अज्यूमिंग एंड असेसिंग. असेस करो बंदे को, उसको देखो कि अच्छा ठीक है ये बंदा लिखता अच्छा है या ये बंदा पढ़ता अच्छा है, बस उसको उतने तक ही रहने दो, उसको चढ़ने मत दो अपने ऊपर. एक पर्सन है जिसको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ चीज़ आती है, वो असेस करो, उसको अज्यूम मत करो कि उसको आती है ठीक है और वो इस चीज़ में मुझसे अच्छा है. एक्सेप्ट दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. एवरीथिंग इज टेम्पररी एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन विल पेरिश. वी ऑल विल डाई. वी ऑल विल गो टू द सेम प्लेस. दैट मीन्स एवरी failure or rejection you have ever had is never going to be permanent. One of the best career advice I've learned is don't ever attach yourself to a person, a place, a company, an organization or a project. Only attach yourself to a mission and your purpose in life. That's how you keep your power and that's how you keep your peace. It felt bad जब मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ था, but when I look back to it, we need these moments in our life. अगर ऐसे moments नहीं होंगे तो we will not appreciate the good moments in our life. So both of the moments are
actually necessary for a better experience in life. Hence, lack of confidence. I used to be the quiet kid. अगर कोई मुझको पहले जानता है तो I used to be really introvert and used to not talk to anyone. And it increased my social anxiety. I used to overthink a lot और मैं फिर बात नहीं कर पाता था किसी से भी. What I did was मैंने दिमाग में बिठा ली एक चीज़ कि nothing is permanent, not even me. तो अगर एक कॉन्वर्सेशन हॉरिबली भी जाती है तो क्या हो गया, दूसरी भी तो कर सकता हूँ. ऐसा थोड़ा है कि दो ही इंसान जिससे मैं बात करता हूँ, नहीं. आई कैन टॉक टू n नंबर ऑफ पीपल्स और उसमें से अगर दो भी बुरी जाती है मैं उससे कुछ सीखूंगा ही. समझ रहे हो? मैं ऐसा नहीं हूँ कि लाइक अगर आ गया तो बम की तरह ऐसे बैठ के रोने लेता हूँ. नो, आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ कि और मैं दूसरे लोगों के साथ बात कर सकूँ अच्छी तरह. आई विल डू दैट. जब मैं और लोगों से बात करूँगा, n नंबर से बातें करूँगा, n नंबर लोगों से बातें करूँगा, तो उनसे कुछ सीखूंगा कि मैंने क्या बोला, क्या गलत बोला, क्या ठीक बोला. आई विल नॉट ओवर थिंक इट बट आई विल गो आउट एंड टॉक. क्योंकि आई विल पेरिश, यू विल पेरिश, वी ऑल डाई एंड नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, जस्ट टू प्रूव दिस पॉइंट, मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपने बाल नहीं बनाए थे एंड आई एम श्योर नो वन केयर्स अबाउट कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं. एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट. उसमें लगता है आपको कि आप ही इकलौते बंदे हो जिसको सब लोग देख रहे हैं और आप ही इकलौते बंदे हो जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं. और उनको अपनी प्रॉब्लम से ही बाहर नहीं निकल पाते हो कि तुम्हारे बारे में सोचें. उनको अपना ही पड़ा होता है और ये नॉर्मल है, सब इंसानों को होता है. सबको लगता है कि दे मैटर अ लॉट इन अदर्स पीपल लाइफ बट एक्चुअली मे एंड टॉक टू पीपल बिकॉज नो वन केयर्स. Let me tell you, no one cares. Solution 3, insecurity is driven by social media. If you ask me कि क्या करूँ मैं तो अगर आइडियली बोलूँगा तो लाइक मैं बोलूँगा कि सोशल मीडिया डिलीट ही कर दो. मैं तो ये बोलने वाला हूँ क्योंकि इट्स नॉट वर्थ है. तुम्हारे को एंग्जाइटी होती है और बोलते हो कि लाइक तुम अपने स्कूल फ्रेंड्स उससे बात करते हो, असाइनमेंटें मांगते हो, ऐसे करते हो. नहीं करते. तुम जिन बंदों से बात करते हो उनके पास तुम्हारे फ़ोन नंबर है, तुम कॉल भी कर सकते हो उनको, ठीक है ना. वो फालतू में बहाने तो मत मारो. तो सिर्फ कनेक्ट करने के लिए औरों से तुम ऐसे बोलते हो कि वो मेरा पुराना दोस्त है उससे बात करता हूँ. तुम नहीं करते हो बात. तुम सिर्फ म्यूचुअल फ्रेंड्स में आते हो, तुम नहीं करते हो बात. मुझे पता है तुम नहीं करते हो. इफ यू आस्क मी आई विल से कि तुम डिलीट कर दो अपना अकाउंट, चाहे फेसबुक चाहे स्नैपचैट हो, कुछ भी हो. फेसबुक तो कौन ही कुछ करता है बट कोई बात नहीं. बट लाइक यू डिलीट दैट. बट आजकल देखा जाए तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है सो इट्स नॉट वायबल. इट्स नॉट एक्चुअली में देखा जाए तो इट्स नॉट वायबल कि तुम ऐसा कर पाओ. तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन मेक अ सेपरेट फोल्डर. सारे सोशल मीडिया ऐप्स डाल दो अपने एंड उसको अपनी जो मेन स्क्रीन है उससे दूर रखो. 3-4 ऐसे स्लाइड लगा के दूर रखो और सेट टाइम लिमिट, टाइम ब्लॉक सेट कर दो कि इतने से इतने मिनट तक ही मैं 1 या 2 घंटा ही इसको देखूंगा दिन में, या 9 से 10 ही जब भी तुमने देखना है तो तुम तब देखो. और ऐसा करने से क्या होगा, तुम माइंडफुल रहोगे जब तुम नेट वेब ब्राउज कर रहे हो. एंड द सेकेंड पार्ट इज़ you have to realize that social media just for the people is just to show their glamorous life to you. तभी ऐसे होता है ना कि इंस्टाग्राम पे तुम जाते हो वहाँ पे लिखा होता है हाईलाइट्स. हाईलाइट्स का मतलब पता है, जो दिन में सबसे बढ़िया चीज़ होती है उसको हाईलाइट बोलते हैं. तो जो दुनिया में जैसे उसके बाद कुछ भी हो रहा है, जैसे उसका ब्रेकअप हुआ, अगर फोटो डालता है कि कॉफ़ी पी है तो उसका हाईलाइट वही कि उसने कॉफ़ी पी है. समझ रहे हो? तो दैट इज़ हाउ यू शुड लुक एट पीपल इन जो हाईलाइट स्टोरीज़ में या तुमको अनअटेनेबल बॉडीज़ दिखती हैं वहाँ पर, चाहे वो बंदी की हो चाहे वो बंदे की हो. दे आर प्रॉब्ली ऑन सम सॉस, स्टीरॉइड्स या ऐसे कुछ पे वो होते हैं. 99% ऑफ द टाइम those gymshark athletes are on gear, those Ferraris are rented, and the people you see on Instagram are living check to check just to maintain their lavish lives. Don't stress about it. That's all for today. Thank you for watching the video. If you like the video, please leave a like, subscribe to my channel और नीचे comment करो what you think about it. This is Saksham signing off. Bye.